Electrochemistry. This is the third unit of chemistry. First, we will deal with electrochemical cell. Electrochemical cell. You are familiar with this type of cell which has already been discussed in class 11. What is an electrochemical cell? The cell in which chemical energy changes into electrical energy. Is called electrochemical cell. Electrochemical cell is also known as galvanic cell. Let us construct an electrochemical cell. There are two containers. One container is having zinc sulfate solution and a zinc rod is immersed in it. This zinc rod will behave as anode. Another container is having copper sulfate solution and a copper rod is placed in it. This copper rod will behave as cathode. Anode is termed as negative terminal. Cathode is termed as positive terminal. Between these two solutions, there is salt bridge. Salt bridge. This salt bridge consists of an inert electrolyte KCl plus agar-agar jelly. Both these electrodes are connected by voltmeter in external circuit. This is the construction of an electrochemical cell. As soon as the circuit is complete, what is going to happen? Zinc will go into the solution in the form of zinc ions. Because zinc is behaving as anode, so oxidation occurs at anode. It is a negative terminal because electrons are present at negative terminal. The electron lost by zinc, they migrate to cathode, and in cathodic compartment what will happen? The copper ion in solution will take this electron and copper will get deposited at copper electrode. We can represent this electrochemical cell in a cell reaction form. At anode, what was happening? Zinc was losing electron. It was undergoing oxidation. At cathode, copper ion present in solution was taking this electron and copper was deposited at copper electrode. So reduction is taking place at cathode. Now the overall cell reaction of this cell is electron get cancelled away. It becomes zinc plus copper ion forming zinc ion plus copper. This is the net cell reaction. This is flow. Electron flows from
anode to cathode. So what about current? The current flows in opposite direction, and there occurs a deflection in this voltmeter. When the cell reaction are taking place, deflection takes place in voltmeter. This deflection confirms that the chemical reaction has resulted in electrical energy. Now there are certain conditions for this A part. If external EMF, this is an electrochemical cell, if we are applying an external EMF over it and this external EMF is less than 1.1 volt, 1.1 volt, this is the voltage, this is the value electrical energy which is produced by this electrochemical cell. So if external EMF is less than 1.1 volt, then the electron will flow from zinc to copper, current will flow from copper towards zinc, and copper will get deposited. It is a one-word question which is generally asked in examination. What happens in electrochemical cell if E external is less than 1.1 volt? Then second condition is if external EMF is greater than 1.1 volt. We are applying an external EMF on this cell and its value is greater than 1.1 volt. Then the entire cell reaction will get reverse. Reversible means what? Now the electron will flow from copper towards zinc. Flow of electron from copper to zinc. Current, flow of current will take place in opposite direction. It is zinc to copper and zinc will be deposited. So these are the two peculiar conditions for this electrochemical cell. ऐसा होता है electrochemical cell में, अगर हम external EMF 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगाएंगे तो पूरी जो इसकी सेल रिएक्शंस हैं ये रिवर्स हो जाती हैं. Now I think you might have understood what is an electrochemical cell. The diagram is very big, so in numerical how we will represent this electrochemical cell. It is generally represented in this form. Representation of cell. How this cell is represented? Anode is written on this side. It is left hand side. So zinc is converting into zinc ion. It is a negative terminal. It is anode. Oxidation is taking place. This is salt bridge followed by cathode. Copper ion oblique copper. This is positive terminal and you call it cathode. This is cathode. This is salt bridge. So this is how electrochemical cell is represented. Now question arises, what is the utility of this salt bridge? It has already been discussed in class 11. 11th में बताया कि salt bridge का function क्या होता है. I have just drawn the diagram before this. So what is the utility of this salt bridge? This salt bridge, its important utility is that it runs this cell continuously. ये cell को लगातार चलने देगा. Second utility of this salt bridge is it prevents the mixing of two electrolytic solution. जो दो electrolytic solution थे, इधर जिंक सल्फेट उधर कॉपर सल्फेट, उनको आपस में मिक्स नहीं होने देगा. एंड थर्ड, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल. जो सेल है वो न्यूट्रल ही रहेगा, उस सेल के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा. तो ये 11th में भी पढ़ा था हमने कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है.
Then after this electrochemical cell, the next topic is electrode potential. Electrode potential. What is this electrode potential? Suppose this is a container और इस कंटेनर के अंदर there is copper sulfate solution. This is copper sulfate solution and we have placed a copper electrode in it. और इसके अंदर हमने किसका इलेक्ट्रोड रखा है? कॉपर का. Copper electrode. Now, what is going to happen? Copper electrode is placed in copper sulfate solution. The copper, if you complete this circuit, here is voltmeter. Copper will come into this solution in the form of copper ions, and from this solution, copper ions will get deposited over this electrode. Both reaction are taking. Copper solution में आ रहा है copper ion के form में, और कॉपर आयन जो इस सॉल्यूशन में था वो दोबारा डिपॉजिट होने लग गया किस चीज के ऊपर? इस कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर. सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द डिफ्लेक्शन इन वोल्टमीटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नाउ व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? द पोटेंशियल बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इन सॉल्ट सॉल्यूशन is called electrode potential. I am repeating it. The potential between metal, this is metal, and its ion in salt solution is called electrode potential. This electrode potential is represented by E. Its symbol is E. Then after this electrode potential, there is electromotive force, EMF. Now, क्लास 11 में भी बताया था कि EMF क्या होता है. EMF in an electrochemical cell, this EMF, the potential difference between the electrode potential of two electrodes constituting a cell is called EMF. एक electrochemical cell के अंदर दो इलेक्ट्रोड थे, उन दोनों इलेक्ट्रोड का अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा. तो जो उन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, that electrode potential difference is called EMF. The potential difference between the electrode potential of two electrodes constituting a cell is called electromotive force, EMF. Or we can write the formula of EMF as EMF is equal to electrode potential of cathode minus electrode potential of anode. This is electrochemical cell. Cathode is placed on right hand side. It can also be written as ER minus EL. Right hand side minus left hand side. You will get the EMF of that cell. It is electrode potential of cathode minus electrode potential of anode. And this potential difference is called electromotive force. After electromotive force, we will deal with hydrogen electrode, standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode. SHE. Now, the standard hydrogen electrode that consists of a platinum wire. This platinum wire is sealed in a glass tube. It is connected to platinum foil at this end.
This is platinum wire. This is glass tube, glass jacket. This is platinum foil. This is hydrogen ion solution having 1 molar concentration. And from this end, we will pass hydrogen gas at 1 atmosphere and stagnant condition 298 Kelvin. This is hydrogen electrode. Hydrogen electrode consists of platinum wire. It is sealed in a glass jacket. There is a platinum foil at one end of this platinum wire having a platinum foil. It is dipped in hydrogen ion solution of 1 molar acid solution of 1 molar concentration, and from this end we are passing hydrogen gas at 1 atmosphere and 298 Kelvin. That is inert standard conditions. Now, what are the cell reaction which are taking place inside this electrode? कौन कौन सी सेल रिएक्शन होगी जब हमने हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रोड में पास कर दी थी? As hydrogen gas passes and enters this cell, this platinum foil absorbs this hydrogen gas. So, at anode, this hydrogen gas, it converts into hydrogen ion, it loses electron. The electrons which are lost by this hydrogen gas, they are taken by hydrogen ion present in solution. We can write this is cathodic reaction. Hydrogen ion present in solution will take the electrons and convert into hydrogen gas. You will see bubbles over here. These bubbles are of hydrogen gas. So you can see this hydrogen electrode, it is behaving as both. ये दोनों की तरह काम करेगा, एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी. So it is taken as standard electrode, और हम इस इलेक्ट्रोड को यूज करके किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का, अगर हमें जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो हम इस इलेक्ट्रोड को यूज करके निकाल सकते हैं. एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाएंगे, दूसरे कंटेनर में हम जिंक का इलेक्ट्रोड लगाएंगे, तो वोल्टमीटर से जो डिफ्लेक्शन है वो बता देगा कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है. इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है, इट्स वैल्यू स्टैंडर्ड, दिस इज सिंबल, इट इज टेकन एज 0 वोल्ट. इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितना होता है? 0 वोल्ट होता है. सो इट इज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और हम इससे किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह. इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड. नाउ हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? हमने इसको रिप्रेजेंट करना है किसी भी न्यूमेरिकल में. डायग्राम तो बना हुआ नहीं आता, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को? इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म. Hydrogen ion 1 molar concentration, hydrogen gas and platinum. ये इसका रिप्रेजेंटेशन है. जहां ये रिप्रेजेंटेशन आएगा इसका मतलब वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. तो यू हैव टू टेक इट्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज 0. इसकी वैल्यू हमको क्या लेनी है? 0 लेनी है. किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर वी विल टेक इट एज 0. तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में था. सिमिलरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लास 11 में पढ़ाया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन. एलिमेंट की जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. वी कैन राइट, मैंने अभी रिएक्शन लिखी थोड़ी देर पहले, जिंक आयन प्लस इलेक्ट्रॉन. और वी कैन राइट अनदर रिएक्शन, इट इज सिल्वर converting into
silver ion plus electron. The tendency of an element to lose electron is called oxidation potential. Reduction potential. रिडक्शन पढ़ाया था 11th में, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया होगा तब बताया था व्हाट इज रिडक्शन. रिडक्शन पोटेंशियल मीन इट इज रिवर्स ऑफ दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी. सपोज इफ आई एम राइटिंग दिस इज कॉपर आयन, इट इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन, is converting into copper, so this is reduction potential. ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिडक्शन पोटेंशियल को. और वी कैन राइट मैग्नीशियम आयन प्लस सपोज इलेक्ट्रॉन ले लिया, कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल. द वैल्यू ऑफ oxidation potential and reduction potential for an element remain same, only there is change of sign. If I am writing zinc ion is converting into zinc and its reduction potential is minus this minus 0.76 volt, then what will be the oxidation potential of this zinc electrode? कुछ नहीं करना है, you just change the value. इसकी वैल्यू प्लस की जगह क्या, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, इट विल बिकम दिस. केवल यहां पर सिंबल चेंज होगा. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का क्या हो जाएगा? प्लस 0.76, रिडक्शन पोटेंशियल विल बी माइनस 0.76 वोल्ट. तो मैं होप दैट यू मे अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल. ओके. So write down the numerical. Calculate EMF for the following cell. हमने EMF निकालना है इस given cell का. I am writing the cell. Nickel converting into nickel ion, this is salt bridge. Copper ion converting into copper. Value of electrode potential of both are given. Electrode potential of nickel ion upon nickel is equal to minus 0.25 volt. Similarly, electrode potential of copper ion upon copper is equal to plus 0.34 volt. Now I have just told you what is EMF. EMF is equal to electrode potential of cathode minus electrode potential of anode. This symbol is for standard 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. What is cathode over here? You see this electrochemical cell. The electrode which are placed on right hand side, they behave as cathode, and the electrode placed on left hand side, it behaves as anode. Moreover, from the value of electrode potential की वैल्यू से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा. तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड होगा और जिसकी वैल्यू कम है वो क्या होगा? एनोड होगा. Now you solve it. Cathode, it's copper. Write the value of this in this formula. 0.34 minus 0.25. You solve it. 0.35 plus 0.25. You will get the answer of it. 5 and 4 9. 3 and 2 5. Now 0.59 वोल्ट. यूनिट लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में यूनिट का भी मार्क्स होता है. तो ये सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल कि हमने ईएमएफ निकालना है एक सेल का. हम ऐसे ईएमएफ निकालेंगे, इट इज कैथोड माइनस एनोड. समझ में आ गया होगा कि कैसे ईएमएफ निकालना है.
Then comes electrochemical series. ये पढ़ा रखा है 11th में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडॉक्स रिएक्शन में, ये टॉपिक भी था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अभी तक जो कुछ भी है वो सब 11th का ही चल रहा है। हम रिकैपिचुलेट कर रहे हैं कि हमने 11th में क्या कुछ पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन क्लास 10? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम क्या कहते थे? रिएक्टिविटी सीरीज। अब नाम बदल दिया, वी आर कॉलिंग इट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? The series in which elements are arranged in order of decreasing value of electrode potential is known as electrochemical series। जिस सीरीज के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है किस बेसिस पर? उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेसिस पर। किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस वैल्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फ्लोरीन सबसे टॉप मोस्ट में है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और सबसे नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है? लिथियम। यहां कहीं बीच में इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या? हाइड्रोजन। अभी पढ़ाया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितना होता है? इट इज 0 वोल्ट। तो ये जितने भी इस हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इट इज प्लस 2.87 वोल्ट, और सबसे नीचे जो लिथियम है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस 3.05 वोल्ट। नाउ यू कैन सी हमने इन एलिमेंट को अरेंज कर रखा है इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू में। सबसे नीचे सबसे कम वैल्यू है, ऊपर एलिमेंट वो है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो दिस सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हारी बुक में बनी हुई है। इफ यू गो थ्रू दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी और जो एलिमेंट इस टॉप ऑफ द सीरीज में रखे गए हैं, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये याद रखो अच्छे से। जिन एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रखे गए हैं, दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही जो एलिमेंट इस सीरीज में सबसे नीचे है या जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव था, दे विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये 11th में भी बताया था मैंने। They will behave as reducing agent, यानी ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये ऊपर वाला क्या है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Now you know about this reactivity series 10th में पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 11th में पढ़ा है। तुम्हें मालूम है कि एलिमेंट जो इस हाइड्रोजन से नीचे होंगे, they can displace हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं इनके एसिड सॉल्यूशन से, और जो इसके ऊपर है they fail to displace, ये डिस्प्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन को उसके एसिड सॉल्यूशन से। सपोज इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल, आई हैव रिटन copper ion copper, its value of electrode potential is this। Similarly Fe plus to Fe, its value of electrode potential is this। Now, out of these two, which will be a stronger reducing agent, either copper or iron? कुछ करने की जरूरत नहीं है। You see the value of electrode potential। अभी मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बताई थी सीरीज के अंदर। दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, एक का पॉजिटिव में है, एक का नेगेटिव में है। तो जिसका नेगेटिव में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। ये क्या एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है आयरन मेटल, कॉपर मेटल, इन दिस केस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली इफ वी आर कंपेयरिंग आयरन, और हमने आयरन को लिख दिया टिन के साथ में Sn+2 टिन, इस टिन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज सपोज दिस। नाउ आउट ऑफ दीस टू which is a stronger reducing agent? कौन stronger reducing agent होगा? आयरन होगा या
10 होगा। यू सी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में है, इसकी भी माइनस में है, इसकी भी माइनस में है। तो अब कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा? यू सी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आयरन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम है और टिन की क्या है, ज्यादा है। मींस जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, इट विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। एंड दिस टिन विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है, एलिमेंट की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है टू बिहेव एज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर कम होगी तो क्या बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर जो टिन है ये क्या चीज है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आयरन क्या चीज है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अंडरस्टूड? आफ्टर दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन, जिसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही है, बोर्ड में कई बार आता है। Before going to that part, let me ask you a simple question. This container is nickel vessel. ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये कंटेनर किसका है? निकल वेसल, निकल कंटेनर है। और इस कंटेनर में वी आर प्लेसिंग 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमने इसके अंदर क्या रख दिया? 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रख दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन वी स्टोर 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन निकल वेसल? क्या हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं निकल कंटेनर के अंदर? अब कैसे पता करना है? द आंसर इज यस और नो। सो in this question they have given the electrode potential value of both. This is copper ion and copper. It is plus 0.34 volt. Similarly, electrode potential of nickel ion and nickel is minus 0.25 volt. ये दे रखा है क्वेश्चन के साथ में। Now can you answer this? Can we store copper sulfate solution in nickel vessel? If you see the value of this electrode potential, what will be the answer? Nickel has negative value of electrode potential, means this nickel is more reactive as compared to copper. ये जो निकल है ये ज्यादा रिएक्टिव है किस चीज से? कॉपर से। तो क्या हो जाएगा? This nickel will displace copper. ये निकल किसको डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी तो क्या कॉपर सल्फेट इसमें स्टोर किया जा सकता है? वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन निकल। हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। बट द रिवर्स रिएक्शन इज ट्रू। अगर हमने उल्टा करना हो तो कर सकते हैं। वेसल कॉपर का बना लो और निकल सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दो तो स्टोर हो जाएगा। पर यहां पर नहीं हो रहा था क्योंकि निकल ज्यादा रिएक्टिव है किस चीज से? कॉपर सल्फेट से। 10th में पढ़ी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 11th में पढ़ी होगी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए वी कैन नॉट स्टोर। द आंसर विल बी नो। ओके, नाउ आई एम डीलिंग द इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज नर्व्स इक्वेशन। नर्व्स इक्वेशन केमिस्ट का नर्व्स, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, कहीं भी आएगा। नर्व्स इक्वेशन, एक इक्वेशन है नर्व्स की, उसके बेसिस पर हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है। नाउ एक्चुअली व्हाट इज दिस नर्व्स इक्वेशन? नर्व्स इक्वेशन क्या है? नर्व्स इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पढ़ा दिया मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन यू नो, क्लास 11 में था ये वर्ड इक्विलिब्रियम में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी पढ़ाया, और इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है उनके बीच का जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज नोन एज नर्व्स इक्वेशन। और वी कैन से द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड नर्व्स इक्वेशन। इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है? नर्व्स इक्वेशन। नाउ व्हाट इज दिस नर्व्स इक्वेशन? है क्या चीज? लेट अस कंसीडर रिएक्शन। ये रिएक्शन है हमारे पास में,
plus electron converts into this. ये मैंने एक जनरल रिएक्शन लिख रखी है. Now we have to apply Nernst equation for this. इसके लिए according to Nernst ने इसके लिए कैसे इक्वेशन लिखी? According to Nernst, E is equal to E naught minus RT upon NF log N solid state upon concentration of mana. ये नर्स ने इस रिएक्शन के लिए जनरल इक्वेशन लिखी थी. नाउ व्हाट आर द टर्म्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन दिस इक्वेशन? इन टर्म्स का मतलब क्या है? दिस ई इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी कंडीशन पर. ये जो ई नॉट है ये मैंने तुम्हें बता दिया, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और यू कॉल इट ईएमएफ भी बताया था मैंने. आर, यू आर फेमिलियर विद दिस आर. इस आर को तुम अच्छे से जानते हो. यह है गैस कांस्टेंट, टी द टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इस रिएक्शन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा वो एन होगा. एफ इज फैराडे कांस्टेंट. फैराडे, माइकल फैराडे एक बहुत बड़ा केमिस्ट है. जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल तब फैराडे के बारे में जिक्र करेंगे. दिस एफ इज फैराडे कांस्टेंट. तुमको मालूम है ये जो मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, पढ़ा हुआ है तुमने क्लास 11th में. Now, if we are going to substitute the values of this R, T and F, हम सब values में रख के रख दो और we can write E is equal to E naught minus, this is log n, इसका बेस 10 में कन्वर्ट करने पर हो जाता है 2.303 into गैस कांस्टेंट तुमको मालूम है 8.314, टेम्परेचर इज 298 स्टैंडर्ड टेम्परेचर अपॉन n number of electrons will remain as it is. Faraday constant is 96500. ये जो log n है base 10 में we will write it this log. Now I am going to change this, it will become in this form. पढ़ाया था इक्विलिब्रियम में concentration of solid and liquid is taken as unity. इनका जो concentration unity लिखा जाता है, लिया जाता है, इसमें मैंने इसको चेंज करके क्या लिख दिया, 1 लिख दिया. ये सब वैल्यूज अगर हम सॉल्व कर दें तो जो इक्वेशन अराइव होगी तुम्हारे मतलब की केवल ये इक्वेशन है, ये याद रखना बस. E is equal to E naught minus 0.591 upon n log concentration of 1 upon MnIn. तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को कहते हैं नर्स इक्वेशन. इस पर बेस होगा न्यूमेरिकल. वो कहेगा सेल पोटेंशियल निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस E एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये सब कैलकुलेट करने के बाद में ये वैल्यू आई थी. तो इसी इक्वेशन को याद रखना है अच्छे से. log 1 upon Mn. ये बीच में तो इनकी वैल्यूज लिखी हुई है, फॉरगेट अबाउट दिस. ये याद रखो सीधा कि नर्स इक्वेशन है क्या चीज. इट इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये क्या चीज है, कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का. अंडरस्टूड? नाउ यू सी, अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो इक्वेशन कैसे बनती है. हम अप्लाई करने जा रहे हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, फ्रेम अ नर्स इक्वेशन. उसने रिएक्शन दे रखी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कह रहा है कि पहले उसके लिए नर्स इक्वेशन बनाओ और नर्स इक्वेशन बनाने के बाद में यू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल. दोनों चीज उसने साथ में पूछ दी है. नाउ हाउ टू अप्लाई इट. एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन. कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में. हाउ टू अप्लाई दिस नर्स इक्वेशन. मैं बताता हूं. एक सिंपल सेल हमने ले रखा है. सपोज हमारे पास एक सेल था, जिस सेल को हम शुरू से पढ़ रहे हैं वही सेल ले लो. जिंक आयन, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर आयन, कॉपर, ये दे दिया उसने सेल. और क्वेश्चन है कि इस सेल के लिए हमने क्या फ्रेम करनी है, नर्स इक्वेशन फ्रेम करनी है. नाउ हाउ विल यू फ्रेम द नर्स इक्वेशन.
तुम्हें मालूम है दो चीजें, यू नो दिस इज एनोड, और ये तुम्हें मालूम था ये क्या चीज है, कैथोड। तो सबसे पहले हम सेल रिएक्शन लिखेंगे, वी विल राइट सेल रिएक्शन। सिंपल सा तरीका है, पहले सेल रिएक्शन लिख दो। तो एनोड पर क्या सेल रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। वैसे ही कैथोड पर क्या हो रहा है, बोलो, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसका डिपोजिशन हो रहा है, कॉपर का। पहले हमने सेल रिएक्शन लिख दी। इस सेल रिएक्शन लिखने के बाद मैंने क्या किया, नेट सेल रिएक्शन, इस पूरे सेल का नेट रिएक्शन लिख दिया। यह जिंक आयन कॉपर आयन, और इस सेल में जो रिएक्शन हो रही थी वो ये है, ये अभी पढ़ाया था जब लेसन स्टार्ट किया था मैंने। दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। नाउ अब फ्रेम करेंगे हम नॉन्स्ट इक्वेशन। ये है नॉन्स्ट इक्वेशन, यहां पर मैंने लिखी हुई है। तो यू राइट दिस नॉन्स्ट इक्वेशन, पहले यहीं से शुरू करें। तो नॉन्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल टू E नॉट, ये मैंने तुमको बता दिया, दिस इज EMF, E ऑफ सेल। कैसे निकालेंगे बता रखा है, कैथोड माइनस एनोड। अब पता है यहाँ पर एनोड भी और कैथोड भी, तो इनकी वैल्यूज रखने पर ये E नॉट निकलेगा, माइनस इस वैल्यू को नहीं छेड़ना है, ये ऐसी रहेगी अपॉन n log। नाउ जो बेसिक इक्वेशन हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस सेल में, तो याद रखो एनोड का कंसंट्रेशन ऊपर लिखा जाएगा और कैथोड का कंसंट्रेशन नीचे लिखा जाता है। तो दिस कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो इस सेल के अंदर एनोड क्या कैथोड क्या है, E is equal to E naught minus 0.591। Now this n मैं कह रहा था ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यू सी दिस रिएक्शन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड। दिस एंटायर रिएक्शन इज 2। यहाँ देखो इस कॉपर पे भी वही चार्ज है, इस पर भी वही, अगर चार्ज दोनों साइड सिमिलर है तो ये जो सिमिलर चार्ज है ये रिप्रेजेंट करेगा किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। ये अच्छे से याद रखना है कि हम n कहां से निकालेंगे। तो ये जो चार्ज है इन आयंस के ऊपर, इफ दे आर सिमिलर, यहां देखो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों की 2 2 है, मैं सीधा n ब्लाइंडली क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, लॉग। अब एनोड रिएक्शन में तुमको मालूम है एनोड कौन है, यह है एनोड। तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन लिखेंगे हम यहां पर अपॉन किसका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो ये मैंने बना दी, ये जो तुमको सेल दिया गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके लिए हमने क्या क्रिएट कर दिए, नॉन्स्ट इक्वेशन क्रिएट कर दी है। ये तुम निकाल लो, ये क्या चीज है, ये पढ़ा रखा है ऑलरेडी। E नॉट इज EMF यानी कैथोड माइनस एनोड। तो ये सिंपल था बिल्कुल, पर कई बार क्या होती है सेल रिएक्शंस बदल जाती हैं। सपोज इफ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, नाउ सपोज सेल ऐसा आ गया कि इसके लिए बनाओ नॉन्स्ट इक्वेशन, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयन सॉल्ट ब्रिज, निकल आयन निकल। और क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था कि हमने इसके लिए क्या फ्रेम करनी है, वी हैव टू फ्रेम नॉन्स्ट इक्वेशन। नाउ यू फर्स्ट सेल को देख लो अच्छे से, ये तुम्हारा जो टर्मिनल है तुमको मालूम है एनोड टर्मिनल है, और ये टर्मिनल क्या होगा, कैथोड। ये तुमको पता है, बता दिया मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन में। तो नॉन्स्ट इक्वेशन फ्रेम करने से पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे, वी विल राइट द सेल रिएक्शन। हम क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे। लिखते हैं सेल रिएक्शन, देखो दोनों की एनोड और कैथोड की सेल रिएक्शन लिखो। ये तुम्हारा एनोड है, तो एनोड की सेल रिएक्शन लिखो। एल्यूमिनियम इज कन्वर्टिंग इनटू एल्यूमिनियम आयन,
तो जितना इसके ऊपर चार्ज है ये उतने ही इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। ऑक्सीडेशन एनोड पर ही होता है, यही पढ़ रहे हैं शुरू से। देन एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा था, निकेल आयन रिडक्शन होता है कैथोड पर। निकेल आयन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, जितना इसके ऊपर चार्ज है, और किसकी डिपोजिशन हो जाएगी, निकेल की। तो मैंने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्प्लिट कर दिया एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन में। नाउ यू राइट द नेट रिएक्शन फॉर दिस। नेट रिएक्शन के लिए ना यू सी क्या हो गया, रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग अलग आ गया। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब बैलेंसिंग सिखाई थी रिडॉक्स रिएक्शन में, तो हम पहले क्या बैलेंस करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दो। तो दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन कट गए हैं। अब लिख सकते हैं हम इसकी जो नेट रिएक्शन है, देखो व्हाट विल बी द नेट रिएक्शन, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 निकेल आयन, और क्या बना रहा है, 2 एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 निकेल। नाउ यू सी आगे रिएक्शन तुम्हारी, दिस इज द नेट रिएक्शन। यू कैन सी रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस करते हैं तो चार्ज बराबर होना चाहिए, 3 2 जा 6, 6 पॉजिटिव, 2 3 जा 6, 6 पॉजिटिव। अगर चार्ज बैलेंस है तो इसका मतलब जो हमारी नेट रिएक्शन है वो नेट रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, बिल्कुल। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने एनोड और कैथोड में क्या बराबर किया था, इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर किया था। हमें मिल गई है नेट इक्वेशन। अब क्वेश्चन था कि हमने इस सेल के लिए क्या बनानी थी, नस्ट इक्वेशन फ्रेम करनी थी। देयरफॉर तुमको बता रखा है मैंने अभी नस्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 log concentration of anode अपॉन concentration of cathode। ये याद रखना है, कई बुक्स के अंदर यहां पर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ये जो वैल्यू है ये रिवर्ट हो जाएगी, कैथोड ऊपर हो जाएगा और एनोड नीचे हो जाएगा। बहुत सारे रिफ्रेशर में यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, पर एनसीईआरटी हम डील कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस है। अगर ये माइनस होगा तो एनोड का कंसंट्रेशन ऊपर, कैथोड का कंसंट्रेशन नीचे। तो यू सब्स्टिट्यूट E is equal to E0 minus 0.0591। What is N? Number of electron। ये सेल रिएक्शन हमने N निकालने के लिए लिखी थी, कितने होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, N तुम्हारा कितना है, 6 है। तो ये 6 ऐसे कर जाएगा। और दूसरा टेक्निक भी है कि इस निकेल के ऊपर +2 चार्ज, इस एल्यूमिनियम के ऊपर यू मल्टीप्लाई दिस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि दोनों चार्ज अलग अलग है, डिसिमिलर चार्ज है। तो 3 2 जा 6, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको किसकी वैल्यू मिल गई, चार्ज को मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू मिल गई 6 log। व्हाट इज एनोड, बताओ एनोड का कंसेप्ट, एनोड क्या चीज है, एल्यूमिनियम आयन एनोड है। तो यहां पर मैं लिखूंगा एल्यूमिनियम आयन, और कैथोड क्या था, निकेल आयन। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या यहीं तक करते हैं और छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, क्या ये पूरा हो गया, स्टिल नस्ट इक्वेशन इज इनकम्प्लीट। यू सी द नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन देखो, नेट रिएक्शन में हमने जो निकेल आयन था इसका कंसंट्रेशन क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया बैलेंस करने के लिए चार्ज, और इस एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन कितना टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स। यहां पर मैं है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस एल्यूमिनियम के कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, और इस निकेल आयन के कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, क्यूब, ताकि n की वैल्यू मिल जाए। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। क्योंकि न्यूमेरिकल में होता है ये तुम भूल जाओगे कि हमने स्क्वायर करना है कि नहीं करना है। इससे पिछले वाले एग्जांपल में मैंने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि n सेम है। कॉपर में देखो +2 है, जिंक में +2 है, तो वही कंसंट्रेशन वहां पे रख दिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो जब इस, और मेनली न्यूमेरिकल इसी बेसिस पर आता है
एक को हमको स्क्वायर या क्यूब करना पड़ेगा, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब पता चलेगा। एल्यूमिनियम आयन को मैंने स्क्वायर कर रखा है, निकल आयन को मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो जो कंसंट्रेशन गिवन होगा न्यूमेरिकल में, इसका स्क्वायर होगा, इसका क्यूब होगा, फिर अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेल पोटेंशियल मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। तो ये दो जनरल मैंने बता दिया, एक सिंपल के लिए बता दिया मैंने बिल्कुल जहां चार्ज सेम था, और ये उसके लिए बताया जहां चार्ज क्या है, डिसिमिलर है। कैथोड के ऊपर अलग आयन और एनोड के ऊपर अलग चार्ज है। आगे होगा इस समझ में कि हमें नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करनी है, और नस्ट इक्वेशन होती क्या है। नस्ट इक्वेशन किसका रिलेशन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन का। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू मैंने इन दो एग्जांपल को तुम्हें समझा करके बता दिया। अंडरस्टूड।